Hello everyone, my name is Biren and welcome to my channel on YouTube. I have started this channel to share my experiences and learnings from my investment journey in very simple terms. So even if you are from finance background or not, even if you are a beginner or well into your investment journey, you'll definitely find some value out of these videos because I'm going to explain everything in very simple manner. So let's get started. A good friend of mine called me up a few days back to talk about a new investment strategy. He was very excited about it. In fact, he insisted that I should also invest in that strategy. He was referring to the new cryptocurrency, Dogecoin. At that point of time, I was very busy, so I told him that I'll reach out to him after a few days. When I called him up after a few days to know कि उसकी investment का क्या हुआ, he was not sounding well. He had lost more than 50% of his capital, and he was not at all happy about it. He was quite dejected. At that point of time, I shared a piece of advice and learnings from my investment strategy, which I am going to share with you guys through these videos. So इस वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा. But before we begin into that, a brief introduction about myself. I have been working in the field of business analytics and data science for the past 10 years. In 2011, I completed my engineering. Because I come from a middle class family, I had taken a huge loan to do my education. So when I started my first job in 2011, my first priority was to clear this education loan. Because हर एक middle class family का ये एक thought process होता है कि you should not have debts because debts are not good. So till 2015, I cleared my entire education loan. Now, I was confused what to do next. Again, हर एक मिडिल क्लास फैमिली का एक एस्पिरेशन होता है दैट दे शुड हैव अ कार. सो दैट इज़ व्हाट आई डिड नेक्स्ट. I bought a car in 2015 and even for that I had taken another loan which was the car loan. So for the first 6 years of my career I was just clearing my debts and I had literally zero savings in my accounts. But even in 2017 when I had cleared all my debts, I was confused as to what should I be doing next. So a lot of my friends and family, they started suggesting that hey, you should go for a house. Now in order to buy a house, the house loan commitment was really big. After doing a lot of research, I realized that it might not be the right thing to buy a house. It may be just fine to stay on rent. So I had put off my decision to buy a house for a few years, but I had to do something with my money. Thankfully, at that point of time, I came across this really good book through which I learned a lot of things. The name of that book was Rich Dad Poor Dad. There are really good learnings from that book, but through this video, I'm going to share the 2 important lessons from the book Rich Dad Poor Dad. The first learning from Rich Dad Poor Dad is that invest in assets, not in liabilities. Now, what is an asset? Anything that puts money in your pocket is an asset. कोई भी चीज़ जो आपकी जेब में पैसा डाले वो एक एसेट है. ऑन दी अदर हैंड, अ लाइबिलिटी इज़ समथिंग दैट टेक्स मनी आउट ऑफ योर पॉकेट. कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी जेब से पैसा निकाले वो एक लाइबिलिटी है. सो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास एक घर है, आप एक घर ओन करते हैं और वो आपने आगे रेंट पे दे रखा है और उस घर से आपको मंथली एक रेंटल इनकम आती है, सो दैट इज़ एन एसेट फॉर यू. बट ऑन दी अदर हैंड, अगर आप खुद उस घर में रह रहे हैं, आपने उसके लिए एक लोन ले रखा है जिसकी आप EMIs पे करते हैं और आप उसका एक मंथली मेंटेनेंस चार्ज भी पे करते हैं, तो दैट इज़ अ लायबिलिटी फॉर यू. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एसेट्स. फर्स्ट इज़ सेविंग्स अकाउंट्स, FDs या फिर रिकरिंग डिपॉजिट्स. सो बेसिकली अगर आप बैंक में पैसा रखते हैं तो उस पैसे के ऊपर आपको कुछ मंथली या ईयरली एक रिटर्न मिलता है. आज की डेट में अगर आप बैंक में पैसा रखते हैं तो आपको 5 से 5.5% का इंटरेस्ट FD पे मिल जाता है. तो ये इंटरेस्ट अभी आज की डेट में 5.5% के करीब है, बट कुछ 10 साल पहले ये 7 से 8% की रेंज में भी हुआ करता था, बट वो ओवर टाइम काफ़ी कम होते जा रहा है. अब बात करते हैं सेकेंड एसेट की, विच इज़ रियल एस्टेट. सो अगर आप कोई घर ओन करते हैं और आपने अगर किराए पे दे रखा है, सो फॉर एग्जांपल लेट से आपका एक घर है जिसकी वर्थ 1 करोड़ रुपए है, आपने उसको 25,000 रुपये महीना किराए पे दे रखा है, तो वो आपको सालाना 3 लाख रुपए रेंटल इनकम देता है. सो उसका 3% रेंटल यील्ड है और आप ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि इस घर की जो वैल्यू है ओवर टाइम एप्रिशिएट करती जाएगी.
थर्ड टाइप ऑफ एसेट इज़ स्टॉक्स, शेयर मार्केट, इक्विटीज़। अगर आप अच्छी रिसर्च करके बहुत ही अच्छे म्यूचुअल फंड्स या फिर कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं तो ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम यू वुड बी एबल टू जनरेट अराउंड 15 to 18% ऑफ रिटर्न। बट अगर हम बहुत ही कंजर्वेटिव एस्टिमेट लेके चलें तो अराउंड 12% ऑफ रिटर्न कैन बी एक्सपेक्टेड इन इक्विटीज़। फोर्थ टाइप ऑफ एसेट इज़ इन्वेस्टिंग इन कमोडिटीज़ लाइक गोल्ड एंड सिल्वर। ट्रेडिशनली अगर हम पिछले 40 साल के रिटर्न देखें तो गोल्ड ने 9% रेट ऑफ रिटर्न एनुअली दिया है। दैट इज़ ऑल्सो अ गुड इन्वेस्टमेंट। अब ये तो हो गए 4 तरह के एसेट, लेकिन इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज़ इन्फ्लेशन या फिर महंगाई। इन्फ्लेशन इज़ समथिंग विच वी डेफिनेटली नीड टू अंडरस्टैंड। इंडिया जैसे कंट्री में अराउंड 6 to 7% ईयरली इन्फ्लेशन है, विच इज़ आपकी जो चीज़ों के दाम है वो हर साल बढ़ते जा रहे हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, जो 1 लीटर दूध का पैकेट 2010 में 25 रुपये का आता था, आज की डेट में वो 50 रुपये का है और अगले साल वो 53 रुपीज़ का मोस्टली हो जाएगा। तो अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो हमें ऐसा एसेट क्रिएट करना चाहिए जो कि इस इन्फ्लेशन को बीट कर सके। दैट इज़ द रिटर्न शुड बी हायर देन 7% ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अब आपको कौन सा एसेट बिल्ड करना चाहिए? इट्स टोटली अ फंक्शन ऑफ कि आपका ऑब्जेक्टिव यानी कि आपका गोल क्या है। बेस्ड ऑन द टाइम फ्रेम आप अपने गोल्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म गोल वो है जो कि अगले 1 या 2 साल में आने वाला है। मीडियम टर्म गोल्स आर समवट लाइक जो आपके 5 या 6 साल के बीच में आपको अचीव करना है। एंड देन कम्स द लॉन्ग टर्म गोल्स जिसमें कि काफ़ी समय है, फॉर एग्जाम्पल मोर देन 10 ईयर्स। शॉर्ट टर्म गोल हो सकता है कि जैसे आपको अगले 1 साल में एक 2 व्हीलर या फिर गाड़ी खरीदना है, या फिर आप अभी ग्रेजुएट हैं और आपको अगले 2 साल बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाना है। सो देन इन दैट केस यू शुड इन्वेस्ट योर मनी इन द एफडीज़। एफडीज़ आर अ वेरी सिक्योर वे ऑफ कीपिंग योर मनी और वो आपको एक फिक्स्ड रिटर्न से 1 या 2 साल में आपका पैसा बना के दे देगा। बट इन केस योर गोल इज़ लॉन्ग टर्म, सो समथिंग लाइक इफ़ यू वांट टू बाय अ हाउस आफ्टर 10 ईयर्स और इफ़ यू वांट टू सेव फॉर योर किड्स एजुकेशन या फिर रिटायरमेंट हो सकता है। सो इन दैट केस अगर आप एफडीज़ के थ्रू अपना पैसा सेव करेंगे या फिर उसको एक इन्वेस्टमेंट की तरह ट्रीट करेंगे, दैट वुड बी रॉन्ग, बिकॉज आपका जो एफडी में जो पैसा है वो 5% से ग्रो करेगा, लेकिन इन्फ्लेशन विच इज़ अराउंड 7% वो आपके पैसे की जो वैल्यू है उसको ओवर टाइम डिटीरियोरेट कर देगा। सो देन फॉर द लॉन्ग टर्म द अदर ऑप्शंस कुड बी रियल एस्टेट, शेयर मार्केट या गोल्ड। फॉर मी रियल एस्टेट वॉज अ बिग नो। देयर वर अ नंबर ऑफ रीजन्स बिहाइंड दैट। एक तो ये कि रियल एस्टेट में एसेट बनाने के लिए आपको इनिशियल कैपिटल बहुत ज़्यादा चाहिए। आपके पास लाखों या करोड़ों रुपए होने चाहिए अगर आपको एक रियल एस्टेट का एसेट बनाना है। रियल एस्टेट में आप डाइवर्सिफाई भी नहीं कर सकते, तो अगर एक जगह आपने पैसा लगा दिया तो उसी जगह पे ही आपका पैसा लगा रहेगा। एंड इन केस आप उसको अगर फ्यूचर में बेचने के लिए भी जाते हैं तो इट्स नॉट दैट ईजी, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। देन कम्स द ऑप्शन ऑफ स्टॉक मार्केट या इक्विटीज़। अब स्टॉक मार्केट को लेकर मेरे बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शंस थे एंड इट्स नॉट द केस जस्ट विद मी बट इट्स विद अ लॉट ऑफ पीपल, बिकॉज हमने काफ़ी ऐसे एग्जाम्पल्स देख रखे हैं जहाँ पे किसी फैमिली फ्रेंड या फिर किसी अंकल ने स्टॉक मार्केट में बहुत सारा पैसा लगा दिया और उसे उड़ा दिया। तो ये काफ़ी बड़ा डिमोटिवेटिंग फैक्टर होता है जिसकी वजह से लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करते। बट जब मैं इसके बारे में रिसर्च कर रहा था तो आई रियलाइज्ड कि अगर मैं अपने पैसे को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करता हूँ, यानी कि मैं इसको डेली बेसिस पे ट्रेडिंग के जैसे ट्रीट नहीं करूँगा, बट अगर मैं इसको ओवर टाइम इन्वेस्ट करते जाऊँगा और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखूँगा तो काफ़ी अच्छा वेल्थ जनरेट किया जा सकता है। सो दिस वॉज वन ऑप्शन दैट आई रियली लाइक्ड एंड आई वेंट अहेड विद इट। और इसमें मैंने 2 सिंपल अप्रोचेज़ के थ्रू अपना पैसा इन्वेस्ट करा और आज भी मैं उन्हीं 2 अप्रोचेज़ के थ्रू अपना पैसा इन्वेस्ट करता हूँ। देन कम्स द लास्ट ऑप्शन विच इज़ गोल्ड। गोल्ड इज़ मोर लाइक अ हेज। हेज का मतलब ये है कि अगर शेयर मार्केट नीचे जा रहा है तो गोल्ड का जो प्राइस है वो राइज करेगा, बट अगर शेयर मार्केट बढ़ रहा है, सो फॉर एग्जांपल आज की डेट में शेयर मार्केट अपने हाइज पे चल रहा है तो गोल्ड का जो रेट है वो काफ़ी नीचे आ गया है। बट अगेन इट इज़ ऑल्सो गुड ऑप्शन इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग फॉर द लॉन्ग टर्म और आपके पोर्टफोलियो का कुछ एक छोटा सा परसेंटेज जो है वो गोल्ड में भी आप रख सकते हैं। सो वी टॉक्ड अबाउट एसेट्स एंड लायबिलिटीज़, विच एसेट्स टू बाय फॉर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। बट देन कम्स द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच इज़ कि इन एसेट्स को बाय करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द सेकेंड इंपॉर्टेंट लर्निंग फ्रॉम द बुक रिच डैड पुअर डैड, विच इज़
पे योरसेल्फ फर्स्ट। अब जो भी हमारा मंथली इनकम होता है, सो फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर इन अ जॉब देन यू वुड बी गेटिंग अ मंथली सैलरी। अगर आपका कोई बिजनेस है तो आपको उससे कुछ बिजनेस इनकम आता होगा। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि जब भी ये इनकम या फिर ये जो सैलरी है आपके पास आती है, उसमें से पहले आप दूसरों को पे करते हैं। हम अपनी नीड्स के लिए पे करते हैं, विच इंक्लूड्स योर रेंटल्स, ट्रांसपोर्टेशन, फ़ोन का बिल एंड देन ग्रोसरीज एट्सेट्रा। Then we also pay for our desires or our wants, which includes going out, going for a dinner, dining out, online ordering या फिर going for a movie etc. And then ये सारे expenses करने के बाद जो भी हमारा अमाउंट कुछ बचता है हम उसको खुद के लिए सेव करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट हैपन्स कि वो अमाउंट काफ़ी कम होता है या फिर ना के बराबर होता है, इसलिए हम कुछ भी सेविंग नहीं कर पाते हैं। वॉट दिस रूल स्टेट्स इज़ कि आपको पहले खुद को पे करना है, विच मीन्स जो भी आपका मंथली इनकम या फिर सैलरी है उसमें से कुछ एक पर्टिकुलर परसेंटेज, कुछ एक पर्टिकुलर अमाउंट आप पहले ही अपनी सेविंग या इन्वेस्टमेंट के लिए रिजर्व कर लीजिए। सो फॉर एग्जांपल व्हाट आई डू इज़, जैसे ही ऑन द 30th ऑफ एवरी मंथ आई गेट माई सैलरी, द वेरी सेम डे आई कीप अ पर्टिकुलर परसेंटेज अराउंड 20% फॉर एग्जाम्पल, वो मैं एक दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता हूँ और जो बाकी 80% अमाउंट मेरे पास बचता है उसमें मैं अपने नीड्स और डिज़ायर्स फुलफ़िल करता हूँ। सो दिस इज़ अ वेरी सिंपल रूल बट इट इज़ क्वाइट इफ़ेक्टिव। और अगर आप इसको अपने लाइफस्टाइल में अगर इसको अडॉप्ट करते हैं तो डेफिनेटली आपके पास एक ऐसा कॉर्पस ओवर अ लॉन्ग टाइम बन जाएगा जिससे कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ सकते हैं। सो डेफिनेटली दिस इज़ वन थिंग दैट यू कैन ऑल्सो ट्राई एंड यू कैन क्रिएट वेल्थ इन द लॉन्ग टर्म। सो आई होप आपको ये कंटेंट काफ़ी यूज़फुल लगा होगा और आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। इफ़ येस, प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि मैं फ्यूचर में काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ डालने वाला हूँ जिससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली प्लीज़ शेयर दीज वीडियोज़ विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, बिकॉज मनी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि काफ़ी कम हमें स्कूल्स में पढ़ाया जाता है एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो मैसेज है वो लोगों तक पहुँच सके। सो थैंक यू फॉर योर टाइम एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।